Hello everyone, welcome back to my channel Pooja Verse. And if you're someone who is new to my channel and you subscribe it because you also want to become an assistant professor or you want to be a researcher, then this is the right video for you. Because मैंने देखा कि recently मेरे चैनल में बहुत नया crowd आया है and they are also looking for the same career opportunities, ठीक है, and the same profession. Like I'm an assistant professor and I get so many queries every single day asking that ma'am, how do you become an assistant professor, ठीक है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, कैसे कैसे, because people don't have any idea, this is not a very popular stream or profession. तो लोगों के माइंड में ये चीज़ नहीं आती है. सो इन टुडेज वीडियो आई टेल यू ऑल द बेसिक्स, ठीक है. और अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू समवन हु is familiar but if you have any doubt, then hopefully this video will solve all your queries. So I'll talk about the UGC NET exam, which is important if you want to be eligible for assistant professor. I'll talk about PhD, is it mandatory or not, and everything in between. So hopefully this video will be very helpful to you. And if you're someone who wants to become an assistant professor and a researcher, or you just want to be like your teacher, then please keep watching. So yeah, let's start today's video. Okay, so starting from know the basics, ठीक है. There are two things if you want to be an assistant professor or if you want to come into teaching, ठीक है, college professor बनना चाहते हो तो. First is the UGC NET exam and second is the PhD. Now there are a lot of speculation around the fact कि PhD इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, या UGC नेट मैंडेटरी है. देखो, मैंडेटरी वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है. प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़. किसी किसी यूनिवर्सिटी में UGC नेट मैंडेटरी होता है, कई कई जगह पे PhD मैंडेटरी होता है. तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे ये कि ये कर लिया तो हो ही जाएगा, ये नहीं करा तो नहीं होगा, ठीक है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. तो आप UGC नेट करके भी कई कई जगह पे सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर कभी आप PhD करके भी हो सकते हैं. क्लियर. सो मैंडेटरी मतलब अभी भी कहीं पे भी नहीं है ऐसे, ठीक है. सो UGC नेट इज एन एग्जाम जो कि कंडक्ट करवाया जाता है एंड इट मेक्स यू एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. लाइक मी, आई क्वालिफाइड माई UGC नेट एग्जाम ड्यूरिंग माई मास्टर्स डिग्री, ठीक है. तो उसके बाद आई वॉज क्वाइट क्लियर कि अब मतलब मैंने कर चुकी हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ. देन आई स्टार्टेड गिविंग द इंटरव्यूज एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड currently I'm an assistant professor and I teach media and journalism. So before we go further, I have something to share with you, and I believe this is going to be very helpful to you if you're someone who is going to prepare for UGC NET journey, and this is something which I want to share with you. These books are from the Oswald books, and these are really going to help you in your UGC NET preparation. Presenting you these two books by Oswald Books. Now this is 19 previous year soft papers. It has previous year papers of 2017 to 2023. It has trend analysis and cutoff. Each are mentioned in different pages. As you can see, this is the cutoff of 2021 to 2023. Then we have trend analysis so that you can understand your paper better. Now, for example, this is a solved paper of November 2021. It has all the clear questions and answers are also provided at the back. Next is this mock test. It has 15 mock test papers and we understand that how important mock tests are. This is a paper, sample paper. As you can see, it has question and these are very relevant to the paper, and at the back you can see the answer keys to have a better understanding. Now these are mind maps, my favorite ones, because this helped me have a good revision of every single topic. Now these are the books which I am recommending you and these are approved by me. So if you're interested to buy these books, मैं link लगा दूंगी description में. You can also use my coupon code and you will get a huge discount after that. And I hope that all these books help you to qualify this exam so that you can achieve your dreams. Okay, so now coming back to the topic. So UGC NET makes you eligible, ठीक है. Now PhD is something which requires 3 to 5 more years into academia, कि आपको पढ़ते रहना पड़ता है. You have to be a scholar. Again, अगर PhD कर रखा आप eligible हो जाते हैं. And अभी recent time में क्या हुआ है कि PhD को थोड़ा ज़्यादा preference दी जा रही. Reason being, we have a lot of scholars who are those who have PhD degrees. सो उनको प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज ऑफकोर्स उन्होंने ये 3 से 5 साल अपनी लाइफ के किसी एक चीज़ को डेडिकेट किए होते हैं. एंड इट इज़ वेरी नेचुरल दैट ऑफकोर्स जब भी इंटरव्यूअर देखेगा कि किसी ने PhD करी है, तो समवेयर वी हैव दिस माइंडसेट कि इन्होंने ज़्यादा पढ़ा है, इनको ज़्यादा नॉलेज है, विच इज़ समवेयर ट्रू. इनको नॉलेज ज़्यादा होता भी है बिकॉज वो इतना टाइम अपना किसी सब्जेक्ट को देते हैं एंड दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑन इट. सो हम समवेयर उनको वी
पहले से हम सोच के रखते हैं कि ठीक है इसने तो कुछ ना कुछ बेटर किया ही होगा, तो पीएचडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंडेटरी, मैं जैसे बोला यूजीसी नेट भी नहीं है, मैंडेटरी हमारा पीएचडी भी नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक पीएचडी, यू नो आप जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर्स करेंगे या फिर अगर आपका यूजीसी आपका या तो अंडर ग्रेजुएट होता है 4 साल का, तो आप फिर पीएचडी अपने किसी भी सब्जेक्ट ऑफ चॉइस उसमें कर सकते हैं। 3 से 4 साल लगते हैं, हम रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, सबमिट करते हैं, देन यू हैव यू गेट दिस डॉक्टरल डिग्री। Now talking about UGC NET exam, it is basically consists of 2 papers. Now one is a paper 1 and then we have paper 2. Paper 1 is common for everyone. ठीक है, 2 कैटेगरीज होती हैं एक्चुअली इसमें। यूजीसी नेट होता है, इसके अंदर तुम्हारे 84 सब्जेक्ट्स आते हैं। देन वी हैव CSI नेट, इसमें अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। CSI आर फॉर साइंस वाले स्टूडेंट्स एंड यूजीसी नेट इज मोस्ट बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड आर्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस भी आता है, ठीक है। तो आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी कहीं पे भी, यूजीसी नेट की मेन वेबसाइट पर भी देखोगे तो उसकी लिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। नाउ यूजीसी नेट में 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 इज कॉमन एज आई सेड, पेपर 2 इज योर कोर सब्जेक्ट, ठीक है। सो कोर सब्जेक्ट में देखो, आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स करा है वो आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है पेपर 2, या फिर आपने अगर यूजी में आपने जो भी एक सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। सो इसी से निकल के आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे यूजीसी नेट देख सकते हैं। 2 बच्चे दे सकते हैं, एक तो जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, तो मास्टर्स अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, इंग्लिश किसी में भी करी वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। नाउ फॉर यूजी स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अगर आपने 4 साल का बैचलर्स करा है, ठीक है, 4 साल का बैचलर्स, नॉट 3 साल वाला नहीं, 4 साल वाला बैचलर्स करा है, तो आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं। और वहाँ पे जाके आपको आपको चॉइस मिलती है कि आप 84 सब्जेक्ट्स में से किस में अपना यूजीसी नेट देना चाहते हैं, बिकॉज आप उसको जाके फिर आप पीएचडी कंटिन्यू करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो 4 साल अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है 4 साल वाली, या फिर अगर आपके पास 2 साल वाला मास्टर्स है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। सो पेपर 2 होता है सब्जेक्ट का, पेपर 1 होता है कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। नाउ पेपर 1 अगेन इट हैज़ 10 यूनिट्स एंड पेपर 2 इट हैज़ अगेन 10 यूनिट्स, ठीक है, 10-10 यूनिट होते हैं। अब पेपर 1 में कितने मार्क्स टोटल, जो यूजीसी नेट का बेसिकली जो मार्किंग स्कीम है वो होता है हमारा 300 मार्क्स का, ओके 300 मार्क्स होते हैं, जिसमें कि यूजीसी जो पेपर 1 है वो आपका होता है केवल 100 मार्क्स का, और उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो बेसिकली आपका पेपर 1 हो गया 100 मार्क्स का इन टोटल। तो सेकेंड इज पेपर 2, पेपर 2 आपका होता है 200 मार्क्स का, जिसमें आपकी 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स ईच, ठीक है। सो 2 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चंस एंड इन टोटल 200, तो पेपर टोटल मिला के कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है। एंड इसमें यस एक बेसिकली क्राइटेरिया होता है कि आपको 40% दोनों में स्कोर करना होता है, अदरवाइज नो मैटर। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 2 में बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया, पेपर 1 में बिल्कुल नहीं करा तो आप पास हो जाएंगे। 40% का एक रहता है, तो मतलब 40 मार्क्स लाना इज इंपॉर्टेंट, बट वो डुएबल है, वो हो भी जाता है। सो ये एलिजिबिलिटी हो गई। क्वेश्चंस में अलग अलग 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आप इसका सिलेबस टू बी डिस्क्रिप्टिव, आपका सिलेबस जाके यूजीसी नेट की वेबसाइट पे देख लेना, या फिर मैं किसी और वीडियो में कभी डिस्क्राइब कर लूँगी, बिकॉज इट इज़ अ लॉट। तो 10 यूनिट बनी होती हैं, ठीक है, और 10 यूनिट आपके पेपर 2 की हो गई। जब आप यूजीसी नेट को कर लेते हैं, अगर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग आपकी कट ऑफ्स आती हैं, उन कट ऑफ को जब आप पार कर लेते हैं तो आप इधर या तो पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे फर्स्ट लेवल, ठीक है, अगर आपके कम मार्क्स थोड़े से आए हैं, या तो आपके अगर इतने मार्क्स आए ही नहीं है तो आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर थोड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो पीएचडी एडमिशन के एलिजिबल होंगे। सेकंड, अगर थोड़े और बेटर मार्क्स आए तो आप यूजीसी नेट आपका हो जाता है, ठीक है, तो आप नेट के लिए एलिजिबल होते हैं। थर्ड इज योर JRF, विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और आप एक उस 1% बच्चे में आ जाते हैं तो आपको मिलता है JRF, विच इज बेसिकली योर फेलोशिप, जो कि आपको दी जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड उसमें अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा फंड दिया जाता है ऑफ 40,000 अराउंड इतना। एंड आप फिर जब भी पीएचडी करेंगे मंथली आपको इतना स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक है। सो दीज वर ऑल द बेसिक जो मैं आपको बताना चाहती थी, सो दैट यू आर नॉट समवन जिसको पता नहीं है, ठीक है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। सो मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, बट येस यूजीसी नेट इज प्रेफरेबल। मेरे केस में यही हुआ था कि मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई था एंड आई वाज एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर इंटरव्यूज होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे करती है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कभी रिटन होता है, कहीं पे डेमो बेस्ड होता है, कहीं पे इंटरव्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यू आर चोजन एंड देन यू प्रोसीड एंड लकीली with all the hard work, hopefully you become an assistant professor. So this is how it is. So yeah, that's it for today's video. I just wanted to give you a gist and basics of what it is.
बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग दिस इशू कि उनको कुछ पता ही नहीं है, बेसिक्स नहीं पता होते हैं, ठीक है. तो आई होप कि आपको बेसिक्स अब क्लियर हो चुके होंगे. एंड या that's for today's video, and I really hope to see you in my next one. Please do let me know if you still have any doubt, and you can comment down below so that I can check your comment and make a video on the same topic. Yeah, that's it. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care everyone.